So next, in final account, as I said, there are two ways to prepare P&L account. One is T format and one is vertical format. And now in this video, we are going to start with the T format, and which starts with trading account, or we can say trading and profit and loss account. So trading account may, as I said, what we are going to put in overall result of trading. And what is trading? Purchase and sales related things. So purchase, production related, or purchase of goods or selling of goods, we are going to put in the trading account. Similarly, goods ka opening stock and closing stock is going to be there in the trading account. Other than that, as expenses we said and incomes we said are going to come in trading and profit and loss account. Direct expenses are going to be part of trading account. What are direct? Those are directly related to the production, manufacturing of the company, whatever the goods or whatever the business they are doing, which are directly related. And what comes under in that category, we'll do that as well. So हम जब बात करते हैं प्रॉफिट्स की, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में और कितने प्रॉफिट है कितने लॉस में है. So there are number of profit means different types of profits. There are different names of profits and there are different types of profits. So when we are talking about different types of profit, so वो जो profits के different types है ना, वो भी आपको क्या करेंगे, वो भी आपको step by step निकलेंगे. कि मतलब ये नहीं है कि पहले आप कोई भी प्रॉफिट निकाल सकते हो. नो, देयर इज अ काइंड ऑफ अ सीक्वेंस that first there will be gross profit, then the other one will come. So as I said, जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहला आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट आप करेंगे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. सो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर जो भी प्रॉफिट निकलेगा, दैट नेम इज गोइंग टू बी ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस अगर लॉस है तो इट इज गोइंग टू बी ग्रॉस लॉस. And other very popular name for the same is, I'll just write it down over here, that other than this, the name is also known as EBDIT, which is known as earning before depreciation, interest and tax. E is earning, B is before, D is depreciation, I is interest and T is tax. So earning before depreciation, interest and tax. सेकेंड प्रॉफिट जो आप निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा. उसके बाद आपका अकाउंट स्टार्ट होगा profit and loss account. So profit and loss account will you are going to start with the gross profits balance या gross loss का जो भी आपका आया, वहां से आप trading account start, profit and loss account start करेंगे. And the first profit we are going to calculate is going to be operating profit. ठीक है जी, which is going to be your operating profit, or OP I have put it over here, operating profit, and which is very important and very kind of the kind of name which is very popular, EBIT, that is earning before interest and tax. As you can see, depreciation मतलब operating profit के लिए depreciation का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका EBIT आएगा. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट आता है आपका अर्निंग बिफोर टैक्स. अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी चला जाएगा. उसके बाद लास्ट कौन सा बचता है, जो सारे सब कुछ पे करने के बाद होगा, मतलब आपका लास्ट क्या बचा, टैक्स. जब आप टैक्स की भी पेमेंट कर दोगे, सो द नेक्स्ट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी नेट प्रॉफिट, विच इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स, और जिसको PAT भी बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और सिमिलरली इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोला जाता है. सो देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ इट. सो एज आई सेड, देयर आर particularly these are going to be the main profits: gross profit, operating profit, EBIT and net profit. But when we are going to calculate profit and loss account के through अगर हम निकालेंगे ना इसको, तो most important profits are going to be gross profit and net profit. आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा और P&L अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो आपको नेट प्रॉफिट दे देगा. But these terms also we should know that what kind of other names of these profits are. So सबसे important, now we'll see the structure of it, the trading account. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे. बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम क्या करने वाले हैं. हमने प्रॉफिट कंपनी का देखना है कि कंपनी घाटे पे चल रही है या उसको मुनाफा हो रहा है. सिंपल है, मेरा कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 का इस महीने सेल कर दिया,
मैंने अपने वर्कर्स को वेजेस दे दी 5000, मैंने रेंट पे करना था 5000 वो कर दिया, मेरे और जनरल एक्सपेंसेस थे वो 10,000 के हो गए। अगर मैं आपको सिंपल बोलती हूँ कि मेरे पास 50,000 थे, उसमें से मैंने इतने का मतलब 50,000 की मेरी इनकम हुई और इतने का मैंने खर्चा कर दिया, तो मुझे बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? हाउ विल यू कैलकुलेट? 50,000 में से 5,000 माइनस कर दोगे वेजेस, 5,000 माइनस कर दोगे रेंट, और 10,000 माइनस कर दोगे अपना जनरल एक्सपेंसेस, तो टोटल 20,000 माइनस कर दोगे और मुझे बहुत सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि मैडम आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो दिस थिंग सिंपल, वेरी सिंपल, वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना इनकम हुआ है आपको और कितना आपका एक्सपेंस और लॉस हुआ है, और उसको माइनस करके यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। यही हमने करना है, बस डिफरेंस इज देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू डू दैट। ओके, सो द स्ट्रक्चर आई विल जस्ट शो यू आउट। दिस इज द स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब as I said कि annual basis पे you are going to prepare, and there are two types of mainly year, financial year and calendar year. calendar year जो कैलेंडर पे होता है, कैलेंडर पे क्या होता है, जो जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर पे खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है जो ज्यादातर कंपनीज यूज करती हैं अपने अकाउंट्स, अपनी कंपनीज के अकाउंट्स क्लोज करने के लिए। हमारा ईयर क्लोज होता है दिसंबर पे, कंपनी ज्यादातर क्लोज करती है 31 मार्च को। 31 मार्च को खत्म करने का मतलब है 1 अप्रैल को स्टार्ट करना, तो उनका रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Okay, so trading account for the year ending 31st March, this is the debit side, this is the credit side. Format is exactly same जो हमने लेजर में किया था। As I said, आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए इसमें, परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही चाहिए। उनको प्लस माइनस करेंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। ठीक है जी। सो ओपनिंग स्टॉक, you are going to start from here on the debit side, to opening stock, similarly to purchases minus purchase return, because आपको नेट परचेज लेनी है। आपने 10,000 का माल खरीदा लेकिन आपने उसमें से 1,000 का वापस कर दिया, वॉट एवर द रीजंस वर, तो आप अपने अकाउंट में 9,000 के परचेजेस दिखाएंगे ना, 10,000 के तो नहीं दिखा सकते। तो वही यहाँ पे कहानी है कि परचेज में से अगर कोई परचेज रिटर्न आपने करी है वो माइनस करके आप बाकी का परचेज रिटर्न, नेट परचेज दिखाएंगे। सेम विद द केस विद सेल। सेल आपने 10,000 की आपका 1,000 का माल वापस आ गया तो आप 9,000 की सेल दिखाओगे। आप ये नहीं दिखा सकते कि मेरी 10,000 की सेल हुई है, भाई 1,000 का आपको रिटर्न आ गया है। तो सेल्स भी नेट सेल्स आ जाएंगी। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे शो हो जाएगा ऑन द क्रेडिट हैंड साइड, एंड एक्सपेंस डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंस ओनली। एज आई सेड, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, और ऑन अदर वेज आल्सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही माने जाते हैं। सो आफ्टर दिस आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग हमको आती है, कैसे करनी है, बिगर साइड का टोटल लिखना है और स्मॉलर साइड को माइनस करना है और उसी के साइड पे बैलेंस आ जाएगा। वेरी सिंपल। अगर आपका एक्सपेंस, ये आपकी एक्सपेंस वाली साइड है, ये आपकी इनकम वाली साइड है, अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। लेकिन अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो आपको लॉस होगा। वेरी सिंपल। तो अगर ये साइड पे बैलेंस आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट, ये साइड पे बैलेंस आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी लॉस। एंड व्हाट टाइप ऑफ लॉस और प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सो दिस इज डन। COGS बाद में करते हैं, एक बार इसका एक सम कैलकुलेट कर देते हैं। Like this is a very simple and very small sum which we can calculate over here. जरूरी नहीं है एवरी टाइम इट इज गिवन कि ओपनिंग स्टॉक ये है, आपको डेट्स भी मेंशन हो सकती हैं। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज 1 जनवरी 2021, दिस इज 31 दिसंबर 2021, तो 1 जनवरी वाला ही ओपनिंग स्टॉक होगा ऑब्वियसली। सो टू ओपनिंग स्टॉक, स्टार्ट हम हमेशा 2 से करते हैं, दिस साइड बाय से करते हैं, वी ऑलरेडी नो, हमने लेक्चर में किया था। ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का आ गया। परचेजेस जो हैं वो आपको दी है 40,000 की, बट हमने अभी करा कि PR जो है, मतलब परचेज रिटर्न जो है, वो हम माइनस करके बाकी की परचेजेस लेंगे। सो परचेज रिटर्न 3,000 माइनस कर लिया तो हमारी नेट परचेज आ जाती है, नेट परचेज आ जाएगी हमारी 37,000। डन। 37। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बाय सेल्स, एंड सेल्स के केस में भी देयर इज अ सेल्स रिटर्न,
60,000 का सेल्स हो गया, और SR दैट इज सेल्स रिटर्न जो है आपकी, कितनी सेल्स आपके प्रोडक्ट्स कितनी वैल्यू का वापस आ गया 10,000 का। तो इट मींस आपकी टोटल सेल्स जो है 60 की नहीं 50 की हुई है, तो 50,000 ये आ गया। और एक ही प्रोडक्ट, एक ही आइटम और बची है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो वी कैन type it out over here, closing stock and closing stock of rupees 15,000. So this is done, I suppose, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दे नहीं रखे, तो मैं इसको डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, हाँ ये। So this is done. So what we will do, we'll do the total of both the sides, 65,000 रहेगा इसका टोटल, एंड ऑब्वियसली आपका इनकम ज्यादा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इस साइड पे। यू कैन सी आपका इनकम जो है वो 67,000 का है, और एक्सपेंस जो है वो टोटल 47,000 का है। सो बैलेंसिंग फिगर जो है आपकी, दैट इज योर, आफ्टर डिडक्टिंग इट यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, दिस इज गोइंग टू बी योर, कहां गया मेरा सम, दिस इज गोइंग टू बी हाउ टू प्रिपेयर इट योर ट्रेडिंग अकाउंट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डिडक्ट 65,000 minus 47,000. So the company is having 18,000 का gross profit. So this is how to prepare trading account, but this is without direct expenses. So एक बार direct expenses वाला भी देख लेंगे. Before going to that, with direct expenses, I have proper list of it, and I'll explain one by one every direct expense. But for this video, this is done. Next video में हम direct expenses का concept एक बार और thoroughly कर लेंगे, and taking this all different types of direct expenses, we can calculate some examples also. We'll perform some examples also. Before that, before ending it, I'll just go with COGS concept also. COGS is your this cost of goods sold. So a trader has to incur various types of expenses for purchases as well as for bringing them in on to his shop for sale. All such expense increase the cost of goods sold. So उससे क्या होगा, जो आपने सेल करनी है, whatever goods you are going to sell into the market, उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपका सिंपल आपने क्या किया, आपने खरीदा माल, आपने प्रोडक्ट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा 20 रुपीज में, और अगर आप वो रॉ मटेरियल ही बिना किसी प्रोसेसिंग के, बिना किसी चीज के, वो 20 के रुपए का कुछ आपको ऊपर से कॉस्ट नहीं पड़ी और वो डायरेक्टली आप सेल कर रहे हो, सो वी कैन से 20 का परचेज किया और 30 का सेल किया तो 10 का प्रॉफिट आ गया, कोई ज्यादा झंझट की बात ही नहीं हुई। बट होता क्या एग्जैक्टली, जब आपने परचेज करी कोई चीज या वॉट एवर यू हैव डेड प्रोडक्शन के लिए, whatever manufacturing you are doing, परचेज के टाइम पे भी जैसे आपने परचेज करा रॉ मटेरियल, तो वहां से आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा होगा, एम्प्लॉय का कॉस्ट लगा होगा, उसको पैसे दिए होंगे जिसने ट्रांसपोर्ट करके लाया है, जो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं उनको पैसे देने पड़े होंगे, और भी छोटे मोटे ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो फैक्ट्री पे हुए होंगे। फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो एक्सपेंस हुए या परचेजिंग के टाइम पे जो ऐसे वाले एक्सपेंस हुए, so these all are going to increase the cost of goods you are going to sell. जो 20 की बेचनी थी शायद आपको कॉस्ट ही अब 30 की पड़ी है और आप 40 की बेचोगे, तो आप क्या करोगे, 40 में से 20 नहीं, 40 में से 30 माइनस करोगे। 30 के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस 10 के ऐड करने पड़ेंगे। सो दैट इज योर cost of goods sold, which is going to increase when you are going to have these kinds of expense which are going to be on purchase, or you can say on production and manufacturing as well. And COGS calculate कैसे होता है, because अगर आप जब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे ना, अभी तो हमने टी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट परफॉर्म किया, बट अगर आप इनकम स्टेटमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको वहां पे ना एग्जैक्टली COGS लेना होता है। इतना सारा कुछ नहीं हमें कैलकुलेट करना होता, जो मैंने अभी इस फॉर्मेट में किया ना, उसमें सिंपल सेल्स में से COGS माइनस कर दोगे। सो द अदर वे टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इज, The other way to calculate gross profit is sales में से, net sales में से अगर आप COGS माइनस कर देंगे, then also you will get the answer, तो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल रहेगा इनकम स्टेटमेंट के केस में। सो इन दैट केस वी शुड हैव द फॉर्मूला विद अस की कैसे होगा, तो वेरी सिंपल, सेल्स
में से COGS माइनस कर रही हूँ, इट मींस जो बाकी के मटेरियल था, मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक, इनसे ये फॉर्मूला बनने वाला है, क्योंकि सेल्स में से माइनस हो रहा है तो यही चार चीजें बचती हैं. सो दैट्स इट ओनली. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करिएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लीजिएगा, यू विल गेट COGS as well. So this is the formula for COGS. In the next video I'm going to, because this is very long now, so I'm not going to take direct expenses one by one in this video. So the next video I'm going to take direct expenses and example solving with taking this these direct expenses into the picture.